ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕರ್ತನಾಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಅಗತ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಂಥ ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ತಾನೇ ನಮಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ತೆರೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಪರಮ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ. ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೆಹೋವನೇ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಅವಕಾಶಗೋಸ್ಕರ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೋ. ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಈ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೋ. ಮಾತುಳ್ಳದೆ ಕರ್ತನೆ, ಈ ಆರಾಧನೆ ಮುಖಾಂತರ ನೀನೇ ಎಲ್ಲ ಘನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಂದೆ ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಂತ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸು, ಪ್ರೇರೇಪಿಸು. ಮಾತುಳ್ಳದ ದೇವರ ಆತ್ಮನೇ, ನೀನೇ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು. ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ 96ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Will read Psalm 96 as responsive reading. हम भजन संहिता 96 अध्याय उत्तर प्रत्युत्तर के रूप में पढ़ेंगे. ನಾನು ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ. ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ 96ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯ 2ನೇ ವಚನ, 4ನೇ ವಚನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನಿಂದ ಓದಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. जैसे मैं पहला वचन पढ़ूंगा, उसके दूसरे वचन आप सभी मेरे साथ इसे दोहराएंगे, पढ़ेंगे और ऐसे हम उत्तर प्रत्युत्तर के रूप में इन वचनों को पढ़ेंगे. We'll read Psalm 96 responsively. यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, है सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ. यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो. दिन दिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो. अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्म का वर्णन करो. क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है. वह तो सब देवताओं से अधिक भययोग्य है. क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है. उसके चारों ओर विभव और ऐश्वर्य है. उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है. देश देश के कुलों, यहोवा का गुणानुवाद करो. यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो. यहोवा का नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है. भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ. पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो. है सारे पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो. जाति जाति में कहो, यहोवा राजा हुआ है. और जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं. वह देश देश के लोगों का न्याय सिधाई से करेगा. आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो. समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे. मैदान और जो कुछ उसमें है वो प्रफुल्लित हो. उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करेंगे. आइए हम 13वां वचन, आखिरी वचन साथ पढ़ेंगे. है यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है. वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है. वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा. ಆಮೇನ್. ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಅಂತ ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದ ನಂತರ
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪರಲೋಕದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. हम इस समय हमारे सिरों को झुकाकर प्रार्थना करेंगे. प्रार्थना के पश्चात हम सारे लोग प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना कहेंगे. बन्नी प्रार्थನೆ ಮಾಡೋಣ. ಕೃಪಾಳುವಾದ ದೇವರೇ, ಕರುಣೆಯುಳ್ಳ ತಂದೆಯೇ, ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಾಗ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಮಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳು ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಸಿರುವಾಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ತನಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡಿದಿ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೇಡುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ನಮಗೆ ಕರ್ತನೆ ಜೀವಿಸುವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸು, ಬೆಳೆಸು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಕೃತ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ನಮ್ಮ ನಡತೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಘನತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹಾಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ತಂದೆ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಸಭಿಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮುಖದ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಿ ಕರ್ತನೆ, ಅವರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕಷ್ಟ, ದುಃಖ, ಸಂಕಟ, ವೇದನೆಗಳು, ಚಿಂತೆ, ಭಾರಗಳು, ವಿಧ ವಿಧವಂಥ ಬಂಧನಗಳಿದ್ದಿದ್ದಾದರೆ, ರೋಗಗಳಿದ್ದಿದ್ದಾದರೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ದೂರಪಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡು, ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡು. ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ನಡೆಸು. ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಜನರು ಎಷ್ಟೋ ದಿನದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ತನೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪಟ್ಟಿರುವಾಗ ಕರ್ತನೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಿಗಲಾರದೆ ಕರ್ತನೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವು ಅತಿ ಬೇಗನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿರುವಾಗ ದೇವರೇ, ನಮಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡು. ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಈ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿರುವಾಗ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದರ ಭಯದಿಂದ ತುಂಬಿರುವಾಗ ದೇವರೇ, ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಧಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ರೋಗವನ್ನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ, ಈ ಜಗತ್ತದಿಂದ ದೂರಪಡಿಸಿ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸು. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳಾರದೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದು ನಿನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ತನೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ತಂದೆ. ಅಂತ ದೇವರೇ, ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಇಡೀ ಮಾನವ ಜಾತಿಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಯೆಹೋವನೇ, ಈ ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ರೋಗದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ ದೇವರಾತ್ಮನೇ ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ನಡೆಸು. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವಾಗ ದೇವರೇ, ನೀನೇ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸು, ಬೋಧಿಸು. ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಘನ, ಮಾನ, ಮಹಿಮೆ, ಎಲ್ಲ ಗೌರವ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಲೋಕದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪ್ರಶಂಸೆಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕ ನೇರ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದನ್ನು ಶ್ರಮಿಸಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆ ಸೇರಿಸುವಂಥ ಕೇಡುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು, ಬಲವು, ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲ ನಿನ್ನವೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ಈ ದಿನ ವೇದ ಪಾಲನಕರಿಸಿದಂಥ ವೇದ ಭಾಗ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 64ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 64ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್
for this morning is chosen from the Old Testament, from book of Isaiah, chapter 64. Isaiah chapter 64. यशाया नबी द्वारा लिखित किताब 64वां अध्याय इस समय हम पुराने नियम से पढ़ेंगे। यशाया का 64वां अध्याय हम पढ़ेंगे। मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। भला हो कि तू आकाश को फाड़कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे। जैसे आग जाड़ जंखाड़ को जला देता, वह जल को उबालती है, उसी रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसा प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठे। जब तूने ऐसा भयानक काम किए जो हमारी आशा से भी बढ़कर थे, तब तू उतर आया, पहाड़ तेरे प्रताप से कांप उठे। क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करे। तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। देख, तू क्रोधित हुआ था क्योंकि हमने पाप किया। हमारी यह दशा तो बहुत काल से है, क्या हमारा उद्धार हो सकता है? हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चितड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, न कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारा अधर्म का कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया है और हमें हमारी बुराई के वश में छोड़ दिया है। तो भी है यहोवा, तू हमारा पिता है। देख, हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुमार है। हम सब के सब तेरे हाथ के काम है। इसलिए है वो यहोवा, अत्यंत क्रोधित ना हो और अनंत काल तक हमारे अधर्म का स्मरण न रख। विचार करके देख, हम तेरी विनती करते हैं, हम सब तेरी प्रजा है। देख, तेरे पवित्र नगर जंगल हो गया, सियोन सुनसान हो गया है, यरूशलेम उजड़ गया है। हमारा पवित्र और शोभायमान मंदिर, जिसमें हमारे पूर्वज तेरी स्तुति करते थे, आग से जलाया गया और हमारी मनभावनी वस्तुओं सब नष्ट हो गए हैं। है यहोवा, क्या इन बातों के होते हुए भी तू अपने को रोके रहेगा? क्या तू हम लोगों को इस अत्यंत दुर्दशा में रहने देगा? परमेश्वर इस पढ़े हुए भाग को आप हमारी आत्मिक लाभ के लिए आशीषित करें। ಹೊಸೊಡಂಬಡಿಕೆ के भाग नए नियम का भाग मार्कनु रचित मार्कನ सुवार्ते, मार्क रचित सुसमाचार 10वें अध्याय 10वां अध्याय 17 से लेकर 22 वचन तक हम पढ़ेंगे। 17 ರಿಂದ 22 वचन तनक ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ। Mark chapter 10 verses 17 to 22 in the New Testament. Mark 10:17 to 22 मार्क रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 17 से लेकर 22 वचन तक। मार्कನ ಸುವಾರ್ತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17 ರಿಂದ 22 ವಚನ ತನಕ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ। As he was setting out on a journey, a man ran up to him and knelt before him and asked him, "Good teacher, what shall I do to inherit eternal life?" And Jesus said to him, "Why do you call me good? No one is good except God alone. You know the commandments. Do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not bear false witness, do not defraud, honor your father and mother." And he said to him, "Teacher, I have kept all these things from my youth up." Looking at him, Jesus felt a love for him and said to him, "One thing you lack. Go and sell all you possess and give it to the poor, and you will have treasure in heaven. And come, follow me."
But at these words he was saddened, and he went away grieving, for he was one who owned much property. And Jesus, looking around, said to his disciples, "How hard it will be for those who are wealthy to enter the kingdom of God." May good God add his blessings upon the reading of the portion. Amen. ಈಗ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಐ ಎಂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಕಾರಿ. ದೇವಾದಿ ದೇವ, ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಓದಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ, ಈ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಿನ್ನ ಶಬ್ದಗಳು, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸು. ದೇವರೇ, ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅದರ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸು, ಪ್ರೇರೇಪಿಸು. ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಇಡೋಣ. हम इन पढ़े हुए भागों में से नए नियम के मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 17 से लेकर 22 वचन तक हम उन वचनों पर आज का मनन करेंगे. देखिए, ये जो पढ़ा हुआ भाग था, ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ ಇದು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೌವನಸ್ಥನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. अ रिच यंग रूलर, एक जवान और बहुत ही धनवान व्यक्ति के बारे में हम इन वाक्यों में हम पढ़ते हैं. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಾಗ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜರುಗುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. हम इस जवान के बारे में और अधिक जानने से पहले हम हमारे इस पृथ्वी पर चल रही है, घट रही है, उन विषयों के पर हम हमारी ध्यान दें. देखिए, आज हम सारे लोग एक ऐसी जीवन जी रहे हैं जिसमें खुशी नहीं है, सुख नहीं है, और ये जो जगत है, धरती है, पृथ्वी है, ये आज दुख से भरा हुआ है, भय से भरा हुआ है. अगर हम देखें, हर दिन जब भी न्यूज़ लगाते हैं, टीवी का न्यूज़ लगाते हैं, तो प्रियो, खुश खबर हमें बहुत बहुत ही कम सुनने को मिलता है. लेकिन ज़्यादातर हम ये सुनते हैं जो बुराई का विषय है या जो दुख की विषय है, उसी को हम ज़्यादा सुनते हैं. देखते हैं कि पहला टीवी ऑन करने के बाद, न्यूज़ ऑन करने के बाद पहला हम देखते हैं कि कोरोना वायरस के बारे में. इस वायरस को लेकर हर दिन, हर पल, हर विषय चर्चित है या चर्चा में हो रही है. ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಆಗಲಿ, ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗುರುತಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. इस कोरोना वायरस के साथों साथ बहुत सारे विषय हैं जो इस जगत में इस समय हो रहा है. ये सब देखकर हमें बहुत भय, डर और हम दुखी हैं. अब हाल ही में हमने ये देखा कि तूफान केवल हमारे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी, अमेरिका में भी और भी बहुत सारी जगह बाढ़ आना और भूकंप होना, जंगलों में आग लगना और निसर्ग के अलग अलग घटनाएं के अलावा आज देशों में झगड़े का माहौल भी है, युद्ध का माहौल भी है.
जैसा हमें पता है कि इंडिया पाकिस्तान का हमेशा से युद्ध का एक माहौल बना रहता है। अब साथों साथ में भारत और चाइना के बीच, इतना ही नहीं, चाइना के साथ अमेरिका, या इस तरह कहें कि सारा विश्व, सारी दुनिया ऐसे माहौल में युद्ध की तैयारी में है। ऐसा लगता है कि तीसरा महायुद्ध बहुत जल्दी होने वाला है। दक्षिण चीन समुद्र में महाशक्तियों का जमावड़ा वहाँ पर हमें देखने मिलता है। ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें हम अपनी आंखों से इस समय देख रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं। लेकिन इन सारे चीज़ों से एक ऐसा भयंकर और दुखद घटना जो हमारी आंखों से नहीं दिखता, वो ये है कि वस्तुएं जो भी इस धरती के, इस जगत के हैं, या जो भी हम लोगों ने कमाया है, उसका नुकसान से कई गुना ज़्यादा आत्मिक या आत्माओं का नाश होना, आत्माओं का नाश होना, ये सबसे भयंकर दुखद स्थिति आज हम मानव जाति के लिए है। लेकिन इसकी ओर किसी की ध्यान नहीं जा रहा है। ये सच्चाई है कि अगर हम आत्मिक रीति से, अगर हम अपने आप को या औरों को और आत्माओं को और लोगों को न बचाएं, तो हम अनंतकालीन के लिए उस पवित्र परमेश्वर के साथ नहीं रह पाएंगे। हम अनंतकालीन के उस आग में जलते रहेंगे, हम नरक में जाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है ये सारी घटनाओं में, ये सारी विषयों में जो हमें दिखता है, उससे अधिक महत्व या उससे अधिक जो दुखद विषय है, आत्माओं का नाश होना, उसके ऊपर ध्यान दें और हमको, अपने आप को हम बचाएं और औरों को बचाने की हम प्रयत्न करें। देखिए, ये इस जो पढ़े हुए भाग में हम एक जवान के बारे में देखते हैं। वो जवान सही समय पर सही व्यक्ति के पास वो आता है और वो सही प्रश्न का सही जवाब भी पाता है। वो सही प्रश्न करता है, उसका सही जवाब भी पाता है, लेकिन सही जवाब मिलने के बाद वो सही निर्णय नहीं कर पाता, सही निर्णय नहीं कर पाता। और ये व्यक्ति बहुत ही भयंकर रीति से ये सही निर्णय नहीं कर पाने से उस नरक का या उस वेदनाओं का, अनंतकालीन की वेदनाएं, अनंतकालीन का आग, उसमें वो जाने के लिए सिद्ध हो गया। वो उद्धार के बहुत करीब था, लेकिन उद्धार में न चलते हुए वो नरक की ओर चल पड़ा। प्रियो, आज सवेरे ये जो व्यक्ति है, इसके बारे में इस तरह लिखा गया है कि वो जवान था और वो अमीर था, और अमीर होने के साथ साथ वो एक शासक, या हम इस तरह कह सकते हैं कि वो एक प्रधान था, जो अधिकारी था। और इसके बारे में इसीलिए इस तरह लिखा है कि लूक लिखता है और मार्क भी कहता है कि वो रिच, इंग्लिश में रिच यंग रूलर, जवान अमीर शासक। However, the details concerning his encounter with Jesus reveals यीशु मसीह के साथ उसकी जो चर्चा हुई, या यीशु मसीह के साथ आमना सामना जब हुआ यीशु मसीह से, तब उसे ये पता लगा कि वो बहुत ही गरीब, बहुत ही पुराना एक गुलाम
गुलाम की नाई वो है। आज प्रियो, मैं इस कहानी से या इस घटना से जो यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के समय घटी, उसके विषय में कुछ और बताना चाहता हूँ, कुछ और हम समझने की प्रयत्न करेंगे। पहला, ये जो व्यक्ति था जिसे हम जवान व्यक्ति, अमीर व्यक्ति कहते हैं, ये व्यक्ति अगर हम इसे देखें, ये यीशु मसीह के पास आया। ये हम इस तरह कह सकते हैं कि उसे आत्मिक दाह, आत्मिक प्यास उसे थी, इसीलिए वो यीशु के सामने या यीशु के पास भागते हुए आया और झुक गया और नमन करते हुए उसने ये कहा कि मैं अनंतकालीन में आने के लिए क्या करूं। या उसने ये जाना कि आज मैं अनंतकालीन को प्राप्त ये करूं, और उसने ये भी जाना कि अनंतकालीन के लिए, अनंतकालीन में चलने के लिए यीशु ही सही व्यक्ति है जो चलाएगा। इसीलिए यीशु के पास आया वो। वचन 15, मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 15 वचन में शायद यीशु को बोलते हुए उसने ये सुना होगा कि परमेश्वर के राज्य को अगर पाना है तो बच्चों की नाई, इन बच्चों की तरह तुम्हें बनना है। तो इसीलिए ये व्यक्ति अब उसके अंदर परमेश्वर के राज्य में या परमेश्वर के राज्य को पाना, उसमें प्रवेश करने की एक आश जाग उठा। लेकिन उद्धार का जो समझ इस व्यक्ति को था वो गलत समझ था, गलत समझ उसमें था उद्धार के बारे में। उसे लगा उद्धार के लिए करना है, कुछ कार्य करना है, उद्धार के लिए कुछ कार्य करना है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि उद्धार के लिए कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले उसने हमारे लिए उद्धार का काम पवित्र लहू बहा कर दिया। We thank God, we thank him because he finished the work of salvation 2000 years ago. ये व्यक्ति नहीं जानता था ये बात, इस बात को वो नहीं जानता था कि उद्धार पाने के लिए यीशु ही, केवल यीशु ही है। वो यीशु के पास आया ये समझ के कि उद्धार को मैं कमाऊंगा या कमा सकता हूं। और उसका दूसरा गैर समझ या गलत समझ ये था खुद के बारे में। वो ये सोचता था कि उद्धार के लिए मैं खुद प्रयत्न करना है या मुझे खुद कुछ करना है उद्धार के लिए, उद्धार पाने के लिए। वो ये भूल गया कि हम अपने जो भी प्रयत्न करेंगे, हम जो भी करेंगे, वो सब एक मैले चितौड़े की तरह है। जैसे हम यशाया में पढ़ते हैं कि एवरीथिंग विच वी डू इज फिल्दी। हम ಸಾರಿ ಚೀಸ್ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಲಸಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರಬಹುದು, ಒಳ್ಳೆಯದರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನರಕದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತದೆ. इट ऑल लीड्स टू हेल. ये सारी हमारे अच्छाई, हमारे या अलग अलग धर्म, जो भी हमारा प्रयत्न है, सारा नरक को लेकर जाएगा. और इस व्यक्ति के अंदर
उद्धारक के बारे में भी गलत धारणाएं थी। A faulty understanding of the Savior he had. वो यीशु को गुरु कहता है, he calls him master. ಯೇಸುವಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗುರು ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆತನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಪರಲೋಕದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ? वो जो जवान व्यक्ति है वो आकर यीशु को ये कहता है कि हे गुरु, हे रबी, मैं अनंतकालीन का राज्य के या परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए क्या करूं? उसका जो समझ है लगभग हम सारे लोगों का समझ भी वैसे ही है। हम यीशु को सिर्फ ये सोचते हैं कि वो स्वर्गलोक के राज्य की ओर चलाने वाला परम प्रधान का एक रूप है, चलाने वाला, स्वर्गलोक को चलाने वाला। हम ये नहीं जानते हैं, ये नहीं समझते हैं कि वो स्वयं ही परलोक स्वर्गलोक का मार्ग है, वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। ये यूहन्ना 14:6 में बहुत ही स्पष्टता से यीशु स्वयं कहते हैं कि मैं ही मार्ग, सत्य, जीवन हूँ। आई एम द वे, ट्रुथ एंड लाइफ। इसीलिए जरूरी है कि हम यीशु को जाने, यीशु के कहा अनुसार वचनों को या उसके बताए हुए मार्गों को जाने से ज्यादा ये कि यीशु से हम चिपके रहे, यीशु से हम लगे रहें, क्योंकि वही सब कुछ है। उससे अगर हम चिपके रहेंगे, उससे हम लग के रहेंगे, तो उसके शब्दों को, उसके बताए हुए हर एक विषय को हम अपने आप उसके ऊपर चलते रहेंगे, अमल करते रहेंगे। ये व्यक्ति जब यीशु से उसका आमना सामना हुआ, तब वो जान पाया कि उसका आत्मिक दशा क्या है, कितना गरीब। उसके बारे में लिखा कि अमीर जवान एक शासक या रूलर, लेकिन जब ये व्यक्ति यीशु को मिलता है तो वो अपने आप को इस दशा में पाया कि वो अमीर नहीं बल्कि एक गरीब पुराना गुलाम है, गरीब पुराना गुलाम है। आत्मिक अगर दृष्टि से हम देखें, उसने अपना आत्मिक दशा को जाना। जब यीशु के साथ वार्तालाप हो रही थी उसकी, तो उसने ये जाना कि उसकी आत्मिक दशा परमेश्वर के राज्य के लिए मेल नहीं करता। उसने ये देखा कि वो वाकई गरीब है, भले वो अमीर था, लेकिन उसकी अमीरी या उसका वैभव, उसकी ऐश्वर्य उसे उद्धार दिलाने के लिए उपयोग नहीं हुआ या नहीं होता। ऐसे हम देखते हैं कि पैसों से हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं, जैसा हम गद्दी खरीद सकते हैं लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। हम खाना खरीद सकते हैं लेकिन भूख को तृप्त नहीं कर सकते, या भूख का संतृप्ति हम नहीं कर सकते। दवाई खरीद सकते हैं लेकिन जो आरोग्य है वो नहीं खरीद सकते। हम कमरा खरीद सकते हैं लेकिन घर नहीं खरीद सकते। हम सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, ये सारे चीज़ खरीद सकते हैं लेकिन प्यार नहीं खरीद सकते हैं। हम इस धरती के दिखने वाले हर विषय खरीद सकते हैं लेकिन अनंतकालीन का जीवन जो परमेश्वर ने वादा किया है वो नहीं खरीद सकते हैं। आप इस समय आपके पास
क्या कुछ ना हो। आप हो सकते हैं कि अच्छा धार्मिक व्यक्ति हो, आप बहुत ही नम्र व्यक्ति हो और एक अच्छा मनुष्य हो। इन सारे विषयों को भी या इन सारे विषयों से भी आप अनंतकालीन का जीवन नहीं खरीद पाएंगे। आज अगर अनंतकालीन का जीवन आपको पाना है तो केवल केवल ईश्वर के पास आना ज़रूरी है, ईश्वर के पास रहना ज़रूरी है। ये व्यक्ति जाना कि वो कैसी बुरी हाल में है। उसने कहा कि अगर हम उसके वार्तालाप को सुनेंगे तो वो कहते कि मैंने हर एक अच्छा मनुष्य का जो भी नियम अनुसार, परमेश्वर के नियम अनुसार जो विषय हैं, उन सारे विषयों का पालन करते हुए मैं एक अच्छा मनुष्य बनकर जिया। उसमें भी परमेश्वर कहते कि एक चीज़, एक विषय जो तू अभी तक नहीं किया या जो तुझ में कमी है, और वो ये यीशु कहता है। यहाँ पर यीशु देखिए उसे ये नहीं कहता कि ऐसी ऐसी कार्य कर तो उद्धार पाएगा, नहीं, सिर्फ यीशु मसीह उस आदमी का, उस व्यक्ति का आत्मिक दशा को यहाँ पर या आत्मिक समस्याओं को यहाँ पर दिखा रहा है। ये कहता है जब यीशु ने इसकी सुनने के बाद यीशु को उसके ऊपर दया तरस आया और यीशु उसे एक ही विषय कहता है कि तेरे पास जो है वो तो छोड़ दे, तो बेच तेरे जायदाद को और गरीबों में तेरा धन बांट, ताकि तू स्वर्गलोक में धनवान हो जा। और ये व्यक्ति ये देखता है, अपने आप को ऐसी दशा में देखता है कि वो एक गुलाम की नहीं, एक बंधुआ की नहीं अपनी जीवन जी रहा है। जो चीज़ वो समझता था कि मैं इसे हासिल किया या मेरे पास इसमें ये सारी चीज़ें मेरे पास है, अब ऐसी स्थिति वो देख पा रहा है कि वो सारी जो चीज़ें उसके पास थी, वो सारी चीज़ें इस व्यक्ति को अपने बंधन में रखा था। He was prisoner. This man thought he had owned a lot of things, but he discovered that the things itself owned him. All the things which he had, those things owned him. वो सारी चीज़ें इसे अपने बंधनों में रखा था। और ये व्यक्ति आत्मिक दशा को जब जानता है, या परमेश्वर के यीशु के पास जब आया तो अपनी आत्मिक दशा को जानने लगा। उससे पहले उसे लगता था कि मैं हर चीज़ अच्छा करता हूँ या हर चीज़ अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन वो कभी अपने आप को या अपनी आत्मिक दशा को वो जान नहीं पाया, या उसका सामर्थ्य, ताकत वो महसूस नहीं कर पाया कि कितना आत्मिक रीति से वो ताकतवर है या सामर्थ्यवान है। वो पूरी तरह कमज़ोर हो चुका था आत्मिक रीति से। और बाद में हम ये देखते हैं कि जब वो परम प्रधान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास जब आया, उस परमेश्वर के पास आने के बाद जब उस परमेश्वर को या उसके बातों को सुनता है, देखता है, या उसकी बातों को वो महसूस करता है, तो वो ये पाता है कि आत्मिक व्यक्ति या आत्मिक विषयों में क्या होना चाहिए। पहला कि वो धीरज धरे हुए व्यक्ति होना चाहिए। यीशु के साथ बात करते हुए समय यीशु बहुत ही धीरज से और उसकी बातों को सुनते हुए उसके ऊपर दया, उसके ऊपर प्यार जताता है। बाइबल इस वाक्य को कहता है कि परमेश्वर उसे प्यार किया, प्रभु ने उसे प्यार किया और ये कहा कि उस प्यार में परमेश्वर उसे
ये संकेत दिया कि मैं तुझे बचाना चाहता हूं। यीशु मसीह नहीं चाहता था कि ये जवान नाश हो, इसीलिए यीशु ने बहुत ही प्यार से उसे कहा और सीधे शब्दों में कहा। देखते हैं कि आत्मिक व्यक्ति धीरज धरा हुआ रहता है और वो बहुत ही स्पष्टता से बात करने वाला होता है। यीशु मसीह बहुत ही सरल रीति से बात किया और कहा कि उसकी आत्मिक दशा पर कोई कीचड़ न उछालते हुए, कोई टीका न करते हुए यीशु ने कहा कि एक चीज जो तू अब भी तुझ में कमी है, वो ये कि तेरे जो संबंध है परमेश्वर के साथ अभी तक नहीं जुड़ा है। तेरा विश्वास उस परमेश्वर पर अभी तक संपूर्ण रीति से नहीं है। वो परमेश्वर के पास तो अपना संबंध नहीं जोड़ा है। इसीलिए यीशु मसीह उससे कहता है कि तेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज की कमी है, एक विषय की कमी है। और यीशु मसीह हम ये देखते हैं कि उसे बहुत ही लंबा चौड़ा उसे वचनों से या उसको मार्गदर्शन नहीं किया, या उसे हर बात को इस तरह उस तरह नहीं बताया। यीशु मसीह बहुत ही संक्षेपित, बहुत ही एक छोटी सी बातों में उससे कहा, तीन आज्ञाओं को या 3 बातों को यीशु ने कहा। पहला, यीशु कहता है कि तेरे पास जो धन दौलत जिसके ऊपर तू गर्व करता होगा, या तेरे पास तेरे हाथ में जो भी है, तेरे सारे जायदाद को वो तू गरीबों में बांट दे, या वो तू बेच गरीबों को दे, या उससे छुटकारा पा। ये व्यक्ति उस विषय को बहुत प्यार करता था। परमेश्वर कहता है कि उसे छोड़। दूसरा, परमेश्वर कहता है कि तू मेरा सूली, या तू अपनी सूली उठा ले, तो मेरे पीछे। तीसरा कहता है कि तू मेरे पीछे हो ले, टेक अप द क्रॉस। अपनी सूली उठाना यानी कि हम इस जगत के हर एक लुभाने वाली चीज़ों को, या इस धरती में जो भी है उन सारे विषयों को प्रमुखता या पहला स्थान न देते हुए, या उसे उसके ऊपर मन न लगाते हुए, हम परम प्रधान परमेश्वर के पीछे हो लेना चाहिए। तो 3 बातें कहता है कि प्रभु कि तेरे पास जो है वो छोड़ दे। दूसरा, तू इस जगत के मोह माया से बाहर आ जा, तू अपनी सूली उठा। तीसरा, तू मेरे पीछे हो ले। और ये 3 बातें जब इसने सुना, ये व्यक्ति सुना, ये सोचा होगा कि यीशु ये कहेगा ये कर वो कर, मैं अपने धन दौलत को निछावर करके हर चीज़ करूँगा और मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करूँगा। शायद ऐसा सोचा होगा। लेकिन जब परमेश्वर यीशु मसीह जब उससे कहता है कि ये 3 विषय ही है, तब ये व्यक्ति, ये मैं इसे इस तरह कहूँगा, ये पुराना गरीब गुलाम अब ये राजा या एक शासक या रूलर, जवान, अमीर न होते हुए एक गरीब, एक पुराना गुलाम हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसका निर्णय उसे उस स्थिति में लाया। उसका निर्णय क्या था? उसने प्रकाश उजियाला को न चुनते हुए अंधेरा को चुना। वो नहीं छोड़ना चाहता था उसके पास जो है
उसके वश में जो है या उसके पास जो है वो नहीं छोड़ना चाहता था। वो उजाला को ठुकराया, अंधेरे को अपनाया। उसने आज़ादी को ठुकराया और हार को, जीत को ठुकराया, हार को उसने स्वीकारा। ये आदमी, ये व्यक्ति, वो उसके पास जो धन दौलत या जो भी कुछ था उसका वो गुलाम हो गया था। उसके बंधनों से, उसके जकड़ से वो छूट नहीं पा रहा था, या छूटने के लिए वो मन नहीं किया। उसने मृत्यु को अपनाया, जीवन को नहीं। जीवन उसके पास आकर मिलता है, जीवन उसके पास आकर बोलता है, जीवन उसके पास आकर अपनाने के लिए अपनी बाहें फैलाता है, लेकिन ये मृत्यु को अपनाने के लिए चला गया। प्रियो, इस कहानी से या इस घटना से हम ये देखते हैं कि ये व्यक्ति को मौका मिला, ये व्यक्ति को मौका मिला, लेकिन ये व्यक्ति उस मौके का फायदा नहीं उठा पाया, क्योंकि वो इस जगत के विषयों में जकड़ा हुआ था। वो आत्मिक विषय के बारे में या अनंतकालीन के विषय के बारे में उसकी सोच कमजोर थी, या वो उसे इस धरती के, इस जगत के खुशी के आगे उसने उस खुशी को, अनंतकालीन की खुशी को समझ नहीं पाया। वो यीशु को केवल एक रब्बी, एक गुरु, एक मार्गदर्शक ही समझा। उसने ये नहीं समझा कि यही कायनात का मालिक है और यही मेरा उद्धार करता है, यही मेरा उद्धारक है। ये समझने में उसने चूक किया, इसीलिए वो अनंतकालीन के नरक की ओर चल पड़ा। प्रियो, आज मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇನ್ನು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಾದರೆ, केवल हम अपने सिर में या अपने ज्ञान में यीशु को अगर रखे हैं, तो आज मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यीशु को अपने मन में उतारें, यीशु को संपूर्ण रीति से अपनाएं, यीशु के पास संपूर्ण रीति से आएं, वो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। इस जगत में जो हो रहा है, जैसे मैंने पहले ही कहा, इन सारी विषयों से हमें डरना नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें परमेश्वर के वचनों में लिखा गया है कि ये सारी चीज़ें होनी है, होगा। इस धरती को परमेश्वर इसका समय सीमित किया है। ये समय पूर्ण होते हुए बहुत सारे कुछ होंगे। इससे भयभीत ना हो। भयभीत उस विषय से हो जो तुम्हें तुम्हारा परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर करें। अनंतकालीन के नरक से डर जा। स्वर्ग स्वयं इस धरती पर उतरकर यीशु के रूप में उसका कार्य उसने किया। हमें कुछ नहीं करना है, हमारे लिए कोई कार्य नहीं रखा बाकी। हमें केवल यीशु ये कहता है मेरे बेटे, है मेरे बेटी, तो मेरे पास आ, तो मेरी ओर चल, तो मेरी ओर एक कदम बढ़ा, तो मैं तेरी ओर मेरा कदम बढ़ाऊंगा। तो मेरे पास आ, तो मुझसे मांग, मैं तुम्हें हर वो विषय दूंगा। ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, ಈ ದೇವರು ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ
ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ಇರಲಾರ್ದಂಥ ಸ್ಥಿತಿ, ದುಃಖ ಪೀಡ ವೇದನೆಗಳು ಇರುವಂಥ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಸಹ ಆತನು ನಮಗೆ ಆತನ ಹತ್ರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವು ನಿಜವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಆತ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಈ ಲೋಕದ ಭಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಭಯಪಡಿಸಲಾರದೆ ಆ ಭಯನೇ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. इस धरती का जो डर है वो डर आपको न डराते हुए वो आपसे निकल जाएगा यदि आप यीशु के पास आज ही अगर चलें. आइए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, उसकी महिमा करते हुए प्रार्थना करेंगे. प्रिय प्रभु, हम आपको इस समय धन्यवाद करते हैं. ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕರ್ತನಿನ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರದಿಂದ ನೀನು ನಮಗೆ ಮಾತನಾಡಿಸಿದಿ, ಬೋಧಿಸಿದಿ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು ಸ್ವಾಮಿ. ಅವನು ಅವಕಾಶದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನರಕದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ. ದೇವರೇ, ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ. ಕರ್ತನೇ, ನಮಗೆ ಅಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಾರ್ದೆ ಮೊದಲೇ ನೀನು ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ನಮಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ನೀನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ. ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಕರ್ತನೇ, ಇನ್ನೂ ನಾವು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಾದರೆ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರದಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದಿದ್ದಾದರೆ, ಯೆಹೋವನೇ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಸಹ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆರಾಧನೆ ಆದಮೇಲೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಕಾಣಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಣಿಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸುತ್ತಾ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಚರ್ಚ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ದೇವರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಅರ್ಪಿಸೋಣ. ಹೇಗಾಗಲೂ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೀವು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾದರೆ ಅಥವಾ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಷ್ಟವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾದರೆ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಚರ್ಚ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಟ್ರೆಜರರ್ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಆನ್ಲೈನಿಂದ ಕಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಸೂಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. यदि किसी को मंथली कंट्रीब्यूशन, मंथली ऑफरिंग या फ्री विल ऑफरिंग अगर आपको देना है, डोनेशन देना है, तो आप चर्च के अकाउंट में ऑनलाइन डाल सकते हैं. और डालने के बाद जो आपको ट्रांजैक्शन स्लिप आता है या जो आपको मैसेज आता है वो आप हमारे ट्रेजरर स्टीफन गौडर इनको आप पहुँचाएँ, इनको दें ताकि आपका रिसिट हम बना पाएँ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರೀಸ್, ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಬರ್ತ್ಡೇಸ್ ದಿಸ್ ವೀಕ್ 15 तारीख 15th एंजेलिना सैमसन कनवली, 16th अलीशा सैमुअल कोनासागर, 17th डोमिनिक डेरिक सोम्स, 18th मिनाल के राव, 19th शोभा विल्सन हिरेकेरूर, 19th लॉरेंस सुतार, 19th साइमन दलबंजन, 19th रॉनी अल्बर्ट फ्रैंकलिन हिरेकेरूर, 19th शाइना स्टीफन गौडर, 20th ಶಾಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಹಿರೇಕೆರೂರ್. ಇವರು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರೀಸ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 14th ಈ ದಿನ ಮಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಯೇಸಯ್ಯ ಮಿನ್ಗೆ, 16th ಮಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಡ್ವಿನ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಸೊಲಮನ್, 18th ಮಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಭಾಷ್
ಆರ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ. 19th ಮಿಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾನ್ ಶಾಂತಪ್ಪ ಮೆಹತರೆ, ಇವರು ತಮ್ಮ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಡಿಯರ್ ಆಲ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ದೇವರು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ परलोकद आशीर्वाद आशीर्वाद ನಡೆಸಲಿ. आइए हम प्रार्थना करें. इन सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे. फिर उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो बीमार अवस्था में है, जिनको परमेश्वर की स्पर्श की आवश्यकता है, और हमारे इर्द गिर्द, हमारे इस राष्ट्र में, इस पृथ्वी में परमेश्वर के शांति, परमेश्वर के आरोग्य, परमेश्वर की ओर से मिलने वाले हर एक आशीषों को हम मानव जाति पर मांगेंगे, और कोरोना वायरस को इस धरती से हटाने के लिए उस परमेश्वर से निवेदन भी करेंगे. आइए हम प्रार्थना करें और उसके बाद हम आशीषित वचन पाकर आराधना की समाप्ति करेंगे. प्रार्थना करेंगे. प्रिय प्रभु, हम आपको फिर एक बार धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं. इस समय हम इन सारे लोगों को आपके पवित्र कदमों में रखते हैं जो अपनी जन्मदिन इस सप्ताह में मना रहे हैं. प्यारे पिता, इस समय विनती करते हैं एंजुलिना सैमसन कनवली, अलीशा सैमुअल कोनसागर, डोमिनिक डेरिक सोम्स, मिनाल राव, शोभा हिरेकेरूर, लॉरेंस सुथार, साइमन डलबंजन, रॉनी हिरेकेरूर, शाइना गौडर, शालू हिरेकेरूर, इन सारे लोगों को जो अपनी जन्मदिन सप्ताह मना रहे हैं, इनको आशीषित करें. आसमानी द्वारों को खोलकर पिता इनके जीवनों में परमेश्वर की आशीषों को उंडालते रहें. इस नए साल में जिससे ये प्रवेश कर चुके हैं, विनती करते प्रभु की इनकी अगुवाई आप करें. अंधकार की शक्तियों से, शैतानी ताकतों से, बीमारियों से, इस कोरोना वायरस से, हर चीज़ों से इन प्रियजनों को बचाएं. इनके ऊपर आपकी सुरक्षा कवच छोड़े, ताकि ये प्रियजन हमेशा संतुष्टि का जीवन पाते हुए, अपने जीवन को सुंदर रीति से बिताते हुए परमेश्वर की महिमा के लिए योग्य ठहर सके. विशेषकर इन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, एंजुलिना के लिए, शाइना के लिए. पिता, इन बच्चों को आशीषित करें, इनको शारीरिक रीति से बढ़ते समय मानसिक और आत्मिक रीति में बढ़ाएं, और होने दे प्रभु की ये बच्चे अपने जीवन के नए साल में प्रवेश करते समय परमेश्वर की मुख्य उजाला अपने जीवन में पाते हुए पिता आपकी बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण होकर अपने जीवनों को अच्छी रीति से जी सके, ऐसी अनुग्रह करें. उसी तरह प्रार्थना करते हैं इन परिवारों के लिए जो अपनी शादी की सालगिरह इस सप्ताह में मना रहे हैं. मिस्टर देवदास मिनगे, मिस्टर एडविन सोलोमन, मिस्टर सुभाष दोडमनी, मिस्टर जॉन शांतप्पा मेहत्रे. पिता, इन सारे परिवारों को आशीषित करें जैसे अपनी शादी की सालगिरह के नए साल में प्रवेश कर रहे हैं. विनती करते प्रभु की इनके ऊपर आपकी सुरक्षा कवच उड़े, इनको हर एक बुराइयों से, बीमारियों से, हर एक बंधनों से बचाए रखें. पिता, इन परिवारों को आप सुंदर रीति से रखें. पिता, ये दोनों पति पत्नी अपने अपने जीवन साथियों को बहुत ही प्यार से, परमेश्वर के इच्छानुसार वे लोग एक दूसरे के साथ रह सके, और अपने परिवार जो उनके हाथों में या उनको आपने दिया है, उस परिवार को ये लोग अच्छी रीति से परमेश्वर की इच्छानुसार चला सके, ऐसी अनुग्रह करें. इनके बच्चों को आशीषित करें. पिता, इनके जीवन के नए वर्ष में आप इनके साथ रहकर इनकी अगुवाई करते हुए इनको गवाही के रूप में रखें. फिर एक बार पिता, इन प्रियजनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं. उसी तरह प्रार्थना करते हैं इन लोगों के लिए जो इस समय बीमार अवस्था में है या कमजोरी की हालत में है. पिता, इन प्रियजनों को आप स्वस्थ करें, इनको चंगाई प्रदान करें, इनको बल दें. विनती करते हैं रिचर्ड डेविड चिनैया के लिए, सुतार आंटी और उनके बेटा लॉरेंस के लिए, पुरी आंटी के लिए, लोबो आंटी के लिए, अर्थर आंटी के लिए, जॉन इमैनुअल इस भाई के लिए, और जोएल बेन इस बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं. इन लोगों को छूकर चंगाई प्रदान करें, आशीषित करें, बल दें, और पिता आप इनके जीवन में आसमानी खुशियों से इन्हें भर दें. इनके जीवन में ऐसे कार्य करें कि आने वाले समय में ये प्रियजन परमेश्वर की चंगाई की कार्य के बारे में गवाही दे सके, और परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए उपयोग हो सके, ऐसे आशीषित करें. उसी तरह प्रार्थना करते प्रभु कि हम इस जगत में जो पीड़ा इस समय है, इन सारी पीड़ाओं को शांत करें. और पिता,
जो बीमारी फैली हुई है और भी फैल रही है, इस बीमारी को आप रोक दे, कोरोना वायरस को आप रोक दे प्रभु। पिता, यदि हम मानव जाति आपसे दूर हैं या आपके प्रेम से इस समय हम दूर अगर रहेंगे, पिता हम सभी को माफ़ करें, हमारे अपराधों को माफ़ करें और हम सारे लोगों को स्वीकार करें और हमारे जीवनों में फिर एक बार, इन सारे मानव जाति के जीवनों में फिर एक बार परमेश्वर की चंगाई, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की हर विषय को भर दें, ताकि हम सारे लोग आप में नलीन होकर, मग्न होकर हमारे जीवनों को व्यतीत कर सकें। पिता, आपके बच्चों को आशीषित करें जो इस समय आपके वचनों को सुनकर आपके चरणों में आपने दिए हुए हर एक आशीषों में से निकाले हुए दान को अर्पण करते समय विनती करते प्रभु कि इन प्रियजनों के दानों को स्वीकार करें, आसमानी द्वारों को खोलकर इनके भंडारों को और भर दें और पिता, इन्हें कोई कमी कोई गति ना हो, हमेशा संतुष्टि का जीवन जी सके, ऐसे अनुग्रह करें। धन्यवाद करते हुए इन सारे लोगों को, हम सारे लोगों को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र मधुर नाम में मांगते करके सुन और दया से कबूल कर पिता, आमीन। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता सुनने वाले और हमारे कलीसिया के हर एक व्यक्तियों के जीवन में अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे, ಆಮೇನ್। ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ। ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದಿದ್ದಾದರೆ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ, ಆಮೇನ್।